دیکھیے، ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے، ایسا کوئی بھی منوس نہیں ہے جو خود کو پہچانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں، خود کو جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ ایک بھی انسان، ایک بھی منوس ایسا نہیں ہے جو خود کو جانتا نہیں، خود کو پہچانتا نہیں کہ میں کون ہوں۔ ہر انسان، ہر منوس خود کو جانتا ہے، خود کو پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ پوچھنے سے بے ساختہ کہہ دے گا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، مگر یہ پہچان جو ہے جنم سے، پیدائش سے، ماں باپ سے جو ملی ہے، سماج سے جو ملی ہے، مذہب سے جو ملی ہے، دھرم سے جو ملی ہے، یہ پہچان سب کی اصلی پہچان نہیں ہے، بنیادی پہچان نہیں ہے، حقیقی پہچان نہیں ہے۔ اس پہچان سے خود کو کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ میں خدا ہوں۔ اس پہچان سے خود کو کوئی بھی نہیں جان سکتا ہے کہ میں بھگوان ہوں۔ کیونکہ یہ پہچان جو ہے ماں باپ نے دی ہے جنم سے، سماج نے دی ہے، مذہب نے دی ہے، تعلیم تربیت نے دی ہے، اور اس پہچان سے ہر کوئی اپنے آپ سے انجان ہے، اپنے آپ سے بے خبر ہے۔ کوئی نہیں جانتا ہے کہ میں کون ہوں، کوئی نہیں پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ جبکہ ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ میں کون ہوں، ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ اس سے بھی اگر پوچھا جائے کہ تم کون ہو تو بے ساختہ فوراً بتا دے گا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ تو بچے بھی خود کو پہچانتے ہیں، سوئم کو پہچانتے ہیں۔ اس میں کوئی اچرج کی، کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ آپ خود کو جانتے ہیں، خود کو پہچانتے ہیں۔ ایک بچہ بھی تو اپنے نام بتا دے گا، اپنی پہچان بتا دے گا، اپنے بارے میں سب کچھ بتا دے گا، اپنے پریوار کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا۔ مگر یہ پہچان ماں باپ کی دی ہوئی جنم سے ہے، پیدائش سے ہے، سماج کی دی ہوئی، مذہب کی دی ہوئی، تعلیم تربیت کی دی ہوئی پہچان ہے، جس سے کبھی کوئی خود کو نہیں جان سکتا ہے کہ میں خدا ہوں، خود کو نہیں جان سکتا ہے کہ میں بھگوان ہوں۔ جبکہ ہر کوئی خدا ہے، ہر کوئی بھگوان ہے، ہر منوس بھگوان ہے، ہر انسان خدا ہے۔ ایسا کوئی بھی منوس نہیں جو بھگوان نہیں، ایسا کوئی بھی انسان نہیں جو خدا نہیں۔ مگر کس انسان سے کہیں گے
کس انسان کو مانیں گے کہ وہ خدا ہے؟ کس منوش سے کہیں گے، کس منوش کو مانیں گے کہ وہ خدا ہے، وہ بھگوان ہے؟ اور اگر آپ نے کہا بھی کہ تم تو خدا ہو، تم تو بھگوان ہو، تو یہ سن کر ہنسے گا، مذاق تو نہیں کرتے؟ کہے گا کہ مذاق تو نہیں کرتے؟ میں اور خدا، میں اور بھگوان پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ وہ نہیں مانے گا کہ میں خدا ہوں، کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ وہ خدا ہے، وہ نہیں پہچانتا ہے کہ وہ خدا ہے، کیونکہ میں کون ہوں یہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے، میں کون ہوں یہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے، ہر کوئی انجان ہے، ہر کوئی انجان ہے، ہر کوئی انجان ہے، نہیں جانتا ہے کہ میں کون ہوں، نہیں پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں، جبکہ ہر کوئی خود کو پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں، خود کو جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ لیکن پھر بھی یہ سوال سب کے لیے ہے کہ میں کون ہوں، اور یہ سوال سب کے اندر ہے کہ میں کون ہوں، اور ہر کوئی اس سوال سے بھاگتا ہے، بھاگ رہا ہے، ڈرتا ہے خود کو پہچاننے سے، خود کو جاننے سے، ڈرتا ہے خود کو جاننے سے، خود کو پہچاننے سے۔ میں کون ہوں اس سوال سے ڈرتا ہے، کیونکہ یہ سوال معمولی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، یہ سوال معمولی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، اور اس کا جواب بھی معمولی نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب معمولی نہیں ہے۔ آپ کے اندر اگر یہ سوال جاگ گئی کہ میں کون ہوں، یہ بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ آپ کے اندر یہ سوال جاگ گئی کہ میں کون ہوں۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہوگی اگر آپ کے اندر یہ سوال جاگ گئی کہ میں کون ہوں۔ اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سوال آپ کو آپ کے اصلی روپ میں، آپ کے اصلی وجود میں لے کر جائے گی، جس سے آپ انجان ہیں، جس سے آپ بے خبر ہیں، جس سے آپ انجان ہیں، جس سے آپ بے خبر ہیں۔ یہ سوال ہی آپ کو آپ کے وجود تک لے جائے گی، آپ کے اصلی عروپ تک لے جائے گی۔
जहां जाकर आप खुदा हैं, भगवान हैं, ये आप देखेंगे कि आपको दिखाई देगी। इसलिए इस सवाल का सामना करना चाहिए, इस सवाल से डरना नहीं चाहिए, इस सवाल से भागना नहीं चाहिए, इस सवाल से लड़ना नहीं चाहिए। इसका जवाब लफ्जी नहीं है कि मैं खुदा हूं कह दीजिएगा, नहीं। शिवोहम शिवोहम बोल दीजिएगा तो हो जाएगा, नहीं। ये लफ्जी जवाब नहीं है कि मैं खुदा हूं, मैं ईश्वर हूं, शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं। ये मुंह से बोल लेने से, ये जुबान से कह देने से नहीं होगी, बल्कि उस हालत में, उस अवस्था में पहुंचना होगा जहां जाकर आपकी जुबान से बेसाख्ता निकलेगी, अनल हक अनल हक अनल हक, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। भले ही आपकी कत्ल कर दी जाएगी, आपकी गर्दन काट ली जाएगी, जैसे अनलक की गर्दन काटी गई, मंसूर को सूली पर लटकाई गई, समस्तवरेज की खाल उतारी गई। हो सकता है शरीयत वाले, मजहब वाले, धर्म वाले ये बात सुनकर आपके साथ भी वैसा ही करे जैसा मंसूर के साथ किए, अनलक के साथ किए, समस्तवरेज के साथ किए। मगर उस वक्त अनलक कहने वाला अनलक नहीं था, वो तो खुदा ही था। पहचाने नहीं, जाने नहीं, और फतवा लगाकर सूली पर लटका दिए, कत्ल कर दिए, खाल उतार दिए। मगर नहीं पहचानने की वजह से, नहीं जानने की वजह से ये लोग शम्स तबरेज को नहीं मारे हैं, अनलक को नहीं मारे हैं, मंसूर को नहीं मारे हैं। अनजाने में ही सही, अनजाने में ही सही ये लोग खुदा को मारे हैं। अब इनका कोई खुदा नहीं है जो लोग अनलक को मारे हैं, शम्स तबरेज को मारे हैं, मंसूर को मारे हैं, क्योंकि ये लोग अपने खुदा को मार दिए। इन लोगों का खुदा मर गया, मंसूर के मरते ही, अनलक के मरते ही, शम्स तबरेज के मरते ही इन फतवा लगाने वाले आलिमों का खुदा मर गया। अब इनका कोई खुदा नहीं है, अब ये किसी के बंदे नहीं है, क्योंकि इन्होंने फतवा लगाकर अपने आप को सही साबित किया और मंसूर को गलत साबित किया। अपने आप को सही साबित किया और अनल हक को गलत साबित किया। अपने आप को सही साबित किया और शम्स तबरेज को गलत साबित किया। मगर इनके गलत साबित करने से तो गलत साबित नहीं हो सकती है। मंसूर खुदा नहीं था, अनलक खुदा नहीं थे, शम्स तबरेज खुदा नहीं थे। इनके फतवा लगाने से तो साबित नहीं हो सकती है। इनके फतवा लगाने से तो साबित नहीं हो सकती है कि मंसूर गलत था, अनलक गलत था,
समझ तबरेज गलत था। खुद को खुदा कहने वाला, खुद को खुदा कहने वाला इंसान था, खुदा नहीं था। मगर नहीं, मगर नहीं, जब मंसूर ने कहा कि मैं हक हूं, हक हूं, हक हूं, तो उस वक्त वो हक ही था, खुदा ही था। शम्स तबरेज ने जो कहा कुन फयकून, ये लफ्ज, ये अल्फाज खुदा ही कह सकता है, कुन फयकून, कह दिया बस हो गया। ऐसे ही मंसूर ने भी जो कहा था, वो मंसूर ने नहीं बल्कि खुदा ने कहा था। थी जुबान उनकी, आवाज देता है तू। तो ये लोग खुद को पहचान गए थे, खुद को जान गए थे, इसलिए मैं खुदा हूं ऐलान कर दिए, मैं हक हूं ऐलान कर दिए, इसलिए ऐलान कर दिए कि मैं खुदा हूं, मैं हक हूं, इसलिए को खुद को पहचान गए, खुद को जान गए। तो जो खुदा है वो खुद को खुदा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जो खुदा है वो खुद को खुदा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? खुदा ही ना कहेगा खुद को, तो खुदा ही कहा। अनलक ने खुद को, मंसूर ने खुद को, शम्स तबरेज ने खुद को। और वहां शम्स तबरेज तो था ही नहीं, मंसूर तो था ही नहीं, अनलक तो था ही नहीं, वहां तो खुदा मौजूद था। थी जुबान उनकी, आवाज देता था तू। मन काना लिल्लाह है, जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह उसी का हो गया। उसके हाथ अल्लाह का हाथ हो गया, उसका पांव अल्लाह का पांव हो गया, उसकी आंख अल्लाह की आंख हो गई, उसके कान अल्लाह के कान हो गए, उसकी जुबान अल्लाह की जुबान हो गई, उसका पूरा वजूद अल्लाह का वजूद हो गया, उसका पूरा जिस्म अल्लाह का जिस्म हो गया, और वो पूरा का पूरा अल्लाह हो गया, पूरा का पूरा अल्लाह हो गया, सर से पांव तक पूरा का पूरा वो अल्लाह हो गया। अब ये जानने वाले, पहचानने वाले, फतवा लगाने वाले नहीं हो सकते, आलिम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि लोग खुदा को जानते नहीं, खुदा को पहचानते नहीं, खुद को जानते नहीं, खुद को पहचानते नहीं। तो जो लोग खुद को नहीं जानते, खुद को नहीं पहचानते, वो लोग बेहोश हैं, बेहोश हैं, बेहोश है, होश में नहीं है, होश में नहीं है, होश में नहीं है। इसलिए वो खुदा होते हुए भी खुदा नहीं है, भगवान होते हुए भी भगवान नहीं है। क्योंकि जो होश में नहीं है वो होते हुए भी नहीं है, वो होते हुए भी नहीं है। तो होश में रहना, होश में आना, ये बड़ी कठिन है, बड़ी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। बड़ी कठिन है, बड़ी मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। अब रही कि आप हर जगह जाते हैं, हर जगह जाते हैं, मगर वहां का वातावरण, वहां का माहौल का जो असर आप पर होती है आपको बेहोश कर देती है। जहां जाते हैं वहीं बेहोशी आपकी बढ़ती है,
جہاں جاتے ہیں وہیں بےہوشی آپ کی بڑھتی ہے، اس لیے کہ بےہوشوں کا ماحول ہے، بےہوشی کا ماحول ہے۔ گھر میں ماں باپ، بیوی بچے، پورا پریوار بےہوش ہے، اور اس بےہوش پریوار کے اندر آپ ہوش میں کہاں سے رہ سکتے ہیں؟ اسکول میں، کلاس میں سبھی بچے بےہوش ہیں، حالانکہ پڑھ لکھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ خود کو نہیں پہچانتے ہیں، خود کو نہیں جانتے ہیں، کیونکہ وہ بےہوش ہے۔ تو اسکول میں بھی بےہوش رہتے ہیں، اور یہ سب تعلیم، یہ سب پڑھائی اور گہری بےہوشی میں لے جاتی ہے، اور گہرا بےہوش کر دیتی ہے۔ تو اسکول کے تعلیم، کتابی تعلیم، کتابی علم جتنے زیادہ آپ حاصل کریں گے اتنے گہری بےہوشی آپ کے اندر ہوتی جائے گی۔ یہ جتنی علم آپ کے اندر اترتی جائے گی اتنی ہی گہری بےہوشی آپ کے اندر بڑھتی جائے گی۔ 8 سال کی عمر تک بےہوش بچہ ہے، 18 سال کی عمر تک نابالغ بےہوش ہے، 40 سال کی عمر تک جو بالغ ہے وہ بےہوش ہے۔ یہ 3 اسٹیج ہے بےہوشی کا: 8 سال، 18 سال اور 40 سال۔ اس لیے دیکھیے گا کہ نبوت 40 سال کے بعد ملی، اس سے پہلے نہیں ملی۔ کوئی بھی بڑی وحدہ، کوئی بھی بڑا مقام، کوئی بھی بڑا مرتبہ، کوئی بھی بڑی ذمہ داری ملک کی 40 سال کے نیچے ہونے پر نہیں ملے گی۔ راشٹرپتی کا پد، راشٹرپتی کا مقام جو بہت بھاری ذمہ داری کی ہے، یہ 40 سال کی عمر کے بغیر آپ کو نہیں دی جائے گی۔ اس کے لیے 40 سال کی عمر میں آنا پڑے گا۔ تو بےہوشی 8 سال کی، 18 سال کی، 40 سال کی، اور یہ 3 اسٹیج میں اگر آپ کی ہوش نہیں آئی تو پھر اس کے بعد زندگی بےہوشی میں گزرے گی، اور گزری ہے سب کی، گزرتی ہے سب کی۔ کوئی ہوش میں زندہ نہیں ہے۔ ہوش میں رہ کر میں کیا کروں گی، میں طوائف و مجرا کروں گی۔ سنیما دیکھنا بےہوشی ہے، فلم دیکھنا بےہوشی ہے، یہ سب نشہ، اس میں نشہ ہے، یہ سب نشہ ہے، ان سب میں نشہ ہے۔ لفظوں میں نشہ ہے، کتابوں میں نشہ ہے، کتابی علم، دنیاوی علوم میں نشہ ہے۔ یہ آپ کو گہری نشہ میں لے جاتی ہے، گہرے نشہ میں لے جاتی ہے، اور گہری بےہوشی میں لے جاتی ہے، اور گہری بےہوش کرتی ہے۔ اور مذہب والے، دھرم والے یہ اور بھی زیادہ گہرا نشہ پلاتے ہیں۔ قرآن کی باتیں، گیتا کی باتیں، رامائن اپنشد کی باتیں، اس میں جو زہر ہے، امرت نہیں ہے، یہ آپ کو مارتی ہے، اس سے آپ مرتے ہیں۔ یہ آپ کو زندہ نہیں کرتی، یہ آپ کو نہیں جلاتی ہے، یہ زہر پلاتی ہے، نفرت کی زہر، نفرت کی زہر ان کتابوں میں ہے، ان گرنتھوں شاستروں میں ہے، جس کا ثبوت دیکھیے گا۔ مندر توڑی جاتی ہے، مسجد توڑی جاتی ہے، مسلمان کو ماری جاتی ہے، ہندوؤں کو مارا جاتا ہے، ہندو مسلمان کے فساد، جھگڑے برپا کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ زہر بھری ہوئی ہے گرنتھ شاستر وید میں، اور یہ زہر آپ کو پلائی جاتی ہے ستسنگوں میں، جلسہ میں، میلاد میں، کٹر پنتھی بنائی جاتی ہے۔
कट्टरपंथी बनाई जाती है। देखने में आप जिंदा होते हैं, देखने में आप जीते हैं, मगर आपको मुर्दा किया जाता है, आपको मारा जाता है, आपको जहर पिलाया जाता है। हर जगह तो शराब पिलाई जाती है, हर जगह तो नशा पिलाई जाती है। देखिए, समाज को, मुल्क को, कौम को लूटने वाले एक तरफ फिल्म वाले हैं जो झूठी किस्से कहानियां, झूठे नाटक, ड्रामा दिखाकर, झूठे एक्शन करके आपके जेब से पैसा ले लेते हैं। 3 घंटा बेहोश करके रखते हैं आपको, आप 3 घंटा बेहोश होकर सिनेमा हॉल में बैठे होते हैं। ये जो दिखाते हैं आप देखते हैं, ये जो दिखाते हैं आप देखते हैं। पर्दे के पीछे क्या है आप नहीं देखते, पर्दे पर जो है वो आप देखते हैं। वो लोग जो पर्दे पर दिखाते हैं ये आप देखते हैं। पर्दे के पीछे की सच्चाई, पर्दे के पीछे की हकीकत सिनेमा वाले कभी नहीं दिखाते। उसके बाद हमारे मुल्क के राजनेता, हमारे मुल्क के शहंशाह, राजा महाराजा, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, काउंसलर, जो मुल्क को नोच नोच कर खा रहे हैं, कौम को नोच नोच कर खा रहे हैं, ये लोग गिद्ध हैं और कौम मुर्दा है। मुर्दा को खाने वाले गिद्ध होते हैं, मुर्दा कौम को खाने वाले गिद्ध होते हैं। तो कौम मुर्दा है, इसको खाने वाले गिद्ध होते हैं, खा रहे हैं नोच नोच कर। कौम को पता नहीं चलती, कौम को मालूम नहीं होता, क्योंकि कौम तो मुर्दा है, पूरा कौम मुर्दा है। पूरा कौम मुर्दा है और मुर्दा किया जाता है मजहब वाले जहर पिलाकर, सिनेमा वाले नाच, ड्रामा, नाटक दिखाकर, और राजनेता झूठ बोलकर, झूठे वादे, झूठे कस्में खा करके, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमें वोट दे दीजिए। तो कौम को लूटने में उसकी अजमत भी लूट रहे हैं, उसके जिस्म को भी नोच नोच कर खा रहे हैं। और एक अच्छी बात मैं बता दूं, कृष्ण अर्जुन को एक जगह ले गया। चलो मैं एक चीज दिखाता हूं। तो जाकर दिखाया कि एक गाय थी जो अपने बच्चे को चाट रही थी, और ऐसी चाटी थी, ऐसी चाटी थी कि बच्चे के जिस्म से खून निकलती थी, और वो चाटती रही, चाटती रही। तो कृष्ण ने कहा, देख रहे हो इस गाय को और इस बछड़े को, देख रहे हो, इससे क्या मालूम होती है? तो बोला, बड़ी प्रेम करती है अपने बच्चे से, बहुत प्यार करती है अपने बच्चे से, और चाट रही है, प्रेम कर रही है। बोले नहीं, ये पागल है। अपने बच्चे को चाटते चाटते लहूलुहान कर दी, खूने खून कर दी, जख्मी कर दी, और उसको अपने बच्चे के दर्द का एहसास नहीं है। ये कैसी माँ है, ये कैसी माँ है? लगता है कि बहुत प्रेम करती है अपने बच्चे से, मोहब्बत करती है अपने बच्चे से, इसलिए दुलार करती है, चाट रही है। मगर ये नहीं देख रही है कि चाटते चाटते उसके बदन के चमड़े तक चाट गई है, अब बदन पर चमड़ा नहीं है, खून ही खून है, और खून को भी चाट रही है। बच्चा धीरे 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 मर जाएगा। ये 14 सदी के माँ और बच्चे की कहानी है, जो आज की दौर की माँ और उसके बच्चे की हकीकत, सच्चाई है, जिसको आप देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो खेलने के लिए बेचैन है, बेताब है, उनके कंधे पर, उनके पीठ पर किताब लाद कर स्कूल भेजा जा रहा है।
ان پر علم کی بوجھ ڈالی جا رہی ہے, کتاب کی بوجھ ڈالی جا رہی ہے. ان کی بھوش, ان کے مستقبل کے لیے بچے کو بچپن چھینا جا رہا, بچے سے بچپن چھینی جا رہی ہے. بڑا ہو کر پیسہ کمائے گا, اس لیے اسے خوب پڑھاؤ, اسے خوب پڑھاؤ. تو آج کل کے ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ جو پریم دکھا رہی ہے, صبح اٹھ کر اپنے بچوں کو لے جا رہی اسکول, اور پھر اپنے بچوں کو اسکول سے لے کر آ رہی ہے گھر, پھر اسے کھلا پلا کر نہلا دھلا کر ٹیوشن بھیج رہی ہے, پھر ٹیوشن سے آ رہا تو پھر ایک جگہ ٹیوشن پر بھیج رہی ہے. مطلب اسے پڑھاتے 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 ایک اچھا پڑھا لکھا انسان بنانا چاہتی ہے. مگر ایک اچھا انسان پڑھا لکھا انسان نہیں ہو سکتا ہے. ایک اچھا انسان پڑھا لکھا انسان نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ دنیا کی تمام ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد, دنیا بھر کی تمام لائبریریاں, یونیورسٹیاں کے علوم حاصل کرنے کے بعد بھی اگر تم کسی کے آنسو کو نہیں پڑھ سکے تو تمہارا سارا علم بیکار ہے, دو کوڑی کیے. اور اگر تمہیں آتما گیان نہیں ہوئی, روحانی علم نہیں ہوا, تمہیں اپنی آتما کا گیان نہیں ہوا, اپنے روح کی علم نہیں ہوئی, اپنی آتما کی, اپنی روح کی پہچان نہیں ہوئی, اپنی پہچان خود کی پہچان نہیں ہوئی, تو سارے علوم جو تم نے حاصل کیا ہے وہ سب دو کوڑی کے. کوٹی پر جگ موا بھیو پنڈت بھیو نہ کوئی, اور 2.5 اکشر پریم کے جو پڑھے سو ہی پنڈت ہوئی. اب یہاں 2.5 اکشر پریم کی بات ہے, تو کتنے سادھو سنیاسی کنٹسٹ کیے ہیں رامائن کو, گیتا کو, بائبل قرآن کو, حافظ ہوئے ہیں. ابھی سنڈے کو, کل پرسوں سنڈے تھی, بریگیڈ میں 1,26,000 بچوں کو کنٹسٹ کرایا گیا ہے گیتا رامائن, جس کا بہت بڑا آیوجن کیا گیا, پروگرام کیا گیا بریگیڈ میدان میں. 5-10 لاکھ لوگ آئے تھے. تو یہ کنٹسٹ کرا لینے سے, حفظ کرا لینے سے, ان کے ذہن پر قرآن گیتا رامائن چھاپ دینے سے, یا ان کے دل پر گیتا رامائن قرآن کو چھاپ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چھاپ دی گئی ہے بس. جیسے کتاب کو چھاپا گیا ہے, ایسے ہی ان کے دل کو چھاپ دی گئی ہے, اس کے دل پر چھاپ دیا گیا ہے. قرآن کو, گیتا کو, رامائن کو, بائبل کو اتارا نہیں گیا ہے. جیسے نبی پر قرآن اتری تھی, اس طرح سے کسی عالم پر, کسی حافظ پر قرآن اتری نہیں ہے, چھاپی گئی ہے. حافظ قرآن کے سینے میں قرآن اتاری نہیں گئی ہے, چھاپی گئی ہے, حفظ کرائی گئی ہے, اس میں اٹھا کر قرآن کو رکھی گئی ہے. جیسے تاکے پر قرآن تھی, اب اس کے دل پر قرآن رکھی ہوئی ہے. جیسے نبی پر قرآن اتری, ایسے کسی عالم پر قرآن نہیں اتری ہے. کیونکہ نبی پر جب قرآن اترتی تھی, آیات اترتی تھی, وہی نازل ہوتی تھی, تو ان کے دل پر قیامت برپا ہوتی تھی, دہل جاتے تھے, کانپ جاتے تھے, چہرہ سرخ ہو جاتی تھی, بت کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے, مردہ لاش کی طرح بن جاتے تھے. تھوڑی تھوڑی آیت اتری, جتنی بھی اتری سب پر نبی کے اوپر جو دل پر اثر ہوئی, جبکہ ان کے دل کو چیرا گیا 3 بار. اس کے بعد انہوں نے خدائی طاقت بھری گئی, اس میں خدا کا نور بھرا گیا, تب ان پر قرآن کا نزول ہوا, قرآن کو نازل کیا گیا. تب ان کے دل پر کیا حال ہوئی, تب ان پہ دل پر کیا گزری. سوچئے قرآن جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر آسمان پر اتارا جاتا تو آسمان پگھل کر
जमीन पर गिर जाता, पहाड़ पर उतारा जाता तो पहाड़ पिघल कर पानी बन जाता, समुद्र में उतारी जाती तो समुद्र सूख कर सेरा बन जाता। मतलब किसी पर कुरान उतारा नहीं जा सकता था, इसलिए कुरान किसी पर नहीं उतरी। 1,24,000 पैगंबरों पर कुरान नहीं उतरा, जो नबी पर उतारी गई वो कुरान 1,24,000 पैगंबरों पर नहीं उतरी। क्यों? कि उनके सीने में जो दिल थी, वो नबी के सीने में जो दिल था वो दिल नहीं थी। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाई नहीं जाती। ऐसे ही नबी के सीने में जो दिल था वो खास दिल थी, और उस खास दिल को 3 बार चीरा गया। एक 8 साल की उम्र में, दूसरा 13 साल की उम्र में, और तीसरा 23 साल की उम्र में। फरिश्ते आकर उठा कर ले गए और उसके सीने को चाक करके चीर करके उसमें से दिल निकाले, और दिल को चीर करके उसको धो करके साफ करके उसमें खुदाई नूर, खुदाई ताकत भर दिए। इतने भर दिए, इतना भर दिए, इतना भर दिए कि पूरी कायनात अगर उनके खिलाफ खड़ी हो जाए तब भी उनके दिल पर कोई असर नहीं होगी। जब इतनी ताकत, इतनी नूर, इतनी पावर, इतनी ऊर्जा भर के दिल को मजबूत किया खुदा ने, तब उस पर वही नाजिल किया, बारी बारी, थोड़ा थोड़ा, टुकड़ा टुकड़ा करके। और हर बार उनका दिल दहल जाती थी, उनका रोआ कांप जाता था, उनके चेहरे सुर्ख हो जाते थे, वो बुत की तरह खड़े हो जाते थे। हाफिज कुरान के सीने में कुरान है, उनकी दिल दहलती है, उनका रोआ कांपता है, उनका चेहरा सुर्ख होता है? नहीं ना। क्यों? उन पर कुरान नहीं उतरी है, उन पर कुरान नाजिल नहीं हुई है, उन पर कुरान को छापी गई है, उन पर कुरान को रखी गई है। जैसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देना, उनके सीने में, दिल पर कुरान को छापी गई है, उन्हें याद है। मगर एक एक आयत का जो असर है हाफिज कुरान के दिल पर नहीं होती है। लफ्ज है, शब्द है, अल्फाज है, जो उनके ऊपर लिखी गई है, छापी गई है, हिफ्ज कराई गई है। लेकिन जो नबी पर कुरान उतरी वो लफ्ज नहीं थी, अल्फाज नहीं थी, वो तो बहुत बड़ी आग थी, क़यामत थी जो उन पर नाजिल होती थी। तो वो कुरान है जो नबी के सीने में महफूज है, वो नहीं जो मस्जिदों में, मसाजिदों में, मदरसों में, पाठशालों में पढ़ाई जाती है। ये कागजी, लफ्जी, किताबी कुरान, और वो नबी के सीने में जो असली कुरान है। जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। वो जो कहे जुबान से, वो जो बोले जुबान से, जिसको असाबियों ने लिखा और जिसको छापा गया, किताब का शकल दिया गया, जिसको दुनिया पढ़ती है, मदरसों में पढ़ाए जाते हैं, हाफिज होते हैं, आलिम होते हैं, मगर वो हकीकत, वो सच्चाई जो कुरान उतरने में, कुरान उतरते में नबी पर जाहिर हुई, नबी के सीने पर जाहिर हुई, नबी के कल्ब पर जाहिर हुआ, नबी के दिल पर जो गुजरा, नबी के दिल पर जो बीता, वो खुदा ही जानता है, नबी ही जानते। दूसरी नंबर बात, ये सब होने के बाद, हो जाने के बाद मेराज हुई मोहम्मद की, मेराज हुआ मोहम्मद की। कुरान उतार लेने के बाद खुदा का राज अभी बाकी थी, उसके लिए मेराज पर बुलाया गया। 27 साल बैठा कर खुदा ने अपना सारा राज बताया। वो बड़ी चीज थी, कुरान से बड़ी चीज थी मेराज की बात। खुदा की बात से खुदा की राज बड़ी थी। तो खुदा की बात
वही के जरिए, जिब्रील के जरिए बारी बारी करके टुकड़ा टुकड़ा करके नबी के पास भेजा गया, नबी के दिल पर उतारा गया। मगर खुदा का राज जो थी वो खुदा को खोलना था, जिसके लिए नबी को मिराज पर बुलानी थी, और नबी को मिराज पर लाया गया। तब राज खुदा का नबी के सीने में उतारा गया, नबी के रूह में उतारा गया। और जैसे जैसे वो राज उतरी, जैसे जैसे वो राज उतरा, सच पूछिए तो खुदा ही खुद उतर गया नबी में। वो राज खुदा था जो नबी में उतर गया, जो नबी में भर गया। और अब जो वहां से नबी लौटे, तब नबी नहीं थे, खुदा था। क्योंकि खुदा बन करो मिराज से लौटे नबी। अब वहां गए जो नबी थे, वहां जाकर मिट गए 27 साल में, मिटा दिया गया 27 साल में। और वहां नबी को खुदा बना करके, खुदा नबी बन करके लौटा और जमीन पर आया। अब यहां पर नबी है नहीं, नबी थे मिराज पर जाने से पहले, मिराज पर पहुंचने से पहले। मगर मिराज पर 27 साल गुजारने के बाद, खुदा का सारा राज अपने अंदर उतारने के बाद, राज क्या थी, खुदा ही खुद उतर गया, नबी को मिटा करके खुदा खुद नबी बन गया। अब वहां से खुदा जमीन पर आया, मगर नबी के शकल में था। सबने नबी समझा, मिराज पर से आए हैं। मगर कोई नहीं समझा कि यहां पर तो नबी नहीं है, खुदा है। अब जो आया है वो नबी नहीं, खुदा है। तो नबी को भी नहीं पहचाने, मंसूर को भी नहीं पहचाने, अनलोक को भी नहीं पहचाने। आज नबी नबी करते हैं, जबकि नबी तो खुदा बन गया, नबी तो खुदा हो गए। अब नबी हैं कहाँ, मोहम्मद हैं कहाँ। जैसे मंसूर नहीं था, खुदा था। अनलहक नहीं था, खुदा था। शम्स तबरेज नहीं था, खुदा था। ऐसे ही मोहम्मद नहीं थे, खुदा थे। तो ये कौन जानता है, ये कौन पहचानता है? उस वक्त कौन जाना, कौन पहचाना कि हमारे सामने अब नबी नहीं है, खुदा है। नबी नहीं है, खुदा है। तो उस वक्त नहीं पहचाने खुदा को, नहीं जाने खुदा को, और सबके बीच में खुदा रहकर अपना जिंदगी गुजार कर चला गया। और कोई नहीं जाना कि हमारे बीच में खुदा था, हमारे बीच में मौजूद खुदा था, हमारे साथ हमारे संग खुदा था। और हम उसे नबी समझकर रह गए, हम उसे नबी समझकर रह गए। तो देखिए, मैंने तो 40 सालों से बहुत सी बातें कही है, और कहता हूं और कहूंगा, और ये सब सच्चाई है, ये सब हकीकत है। जो आपको सुनकर यकीन नहीं होगी, ये अलग बात है, भरोसा नहीं होगा, ये अलग बात है। मगर ये सब हकीकत है, सच है। इसके लिए आपको ग्रंथों, शास्त्रों में, गीता, रामायण, बाइबल में खोजना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, शब्दों में, लफ्जों में तलाशना नहीं पड़ेगा। इसके लिए खुद को जानना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। और जब तक आप नहीं पहचानेंगे खुद को, नहीं जानेंगे खुद को, तो आप राम को भी नहीं जान सकते, कृष्ण को भी नहीं जान सकते, नानक और मोहम्मद को भी नहीं जान सकते। क्योंकि खुद को जो नहीं जानता वो खुदा को नहीं जान सकता, स्वयं को जो नहीं जानता वो भगवान को नहीं जान सकता। तो जितने पुजारी हैं जो मंदिर में पूजा करते हैं मूर्ति की, राम की, कृष्ण की, शंकर की, गणेश की, ये लोग
नहीं जानते हैं राम को, नहीं जानते हैं कृष्ण को, नहीं जानते हैं बुद्ध को, नहीं जानते हैं महावीर को। उनकी मूर्ति को पूजते हैं, उनकी तस्वीर को पूजते हैं और उनकी मूर्ति को, उनकी तस्वीर को ही भगवान मानकर उसके आगे झुकते हैं, उसकी सजदा करते हैं। जबकि आज भी राम है, कृष्ण है, नानक है, मोहम्मद है, खुदा है, भगवान है, ईश्वर है और आप हैं, मैं हूं, सब है। ये नहीं कि राम जो थे वो आज नहीं है, कृष्ण जो थे आज नहीं है, नानक और मोहम्मद जो थे आज नहीं है, बुद्ध महावीर जो थे आज नहीं है। नहीं नहीं, क्योंकि वो भगवान थे, आज हैं। वो भगवान थे, आज हैं। अगर वो इंसान होते तो आज नहीं होते, अगर वो मनुष्य होते तो आज नहीं होते, मर गए उसके बाद वो नहीं होते, मर जाने के बाद वो नहीं होते। मगर वो तो भगवान थे इसलिए वो मरे नहीं और मरेंगे नहीं। उस वक्त भी वो भगवान थे, इस वक्त भी वो भगवान है। उस वक्त भी वो भगवान थे, इस वक्त भी वो भगवान है। और अगर आप खुद को नहीं जानेंगे, खुद को नहीं पहचानेंगे तो आप भी भगवान हैं, आप भी खुदा हैं। ये आप कभी नहीं जान सकेंगे, कभी नहीं पहचान सकेंगे। और जितना ग्रंथों को, शास्त्रों को, वेदों, उपनिषदों को पढ़ेंगे उतना ही खुद को भूलते जाएंगे, उतना ही खुद को भूलते जाएंगे। क्योंकि इनमें जहर भरी हुई है आपको मारने के लिए, ये जहर से भरी हुई है। ये सारे ग्रंथ, शास्त्र, वेद, किताब, इनके लफ्जों में, शब्दों में शराब नहीं, नशा नहीं, जहर है, जहर है, जहर है, जो आपको मार देगी, रूह को मार देगी, आत्मा को मार देगी। आज मस्जिदों में, मंदिरों में, गिरजाओं, गुरुद्वारों में गीता, रामायण, बाइबल, कुरान को पढ़ने वाले पूरे के पूरे मरे हुए हैं, मुर्दा हैं, जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है। क्यों? जो जहर पिलाया गया है, जो जहर पिलाया गया है, वो जहर आपको मारा है, वो जहर आपको मार दिया है। अब जिंदा होने का एक ही रास्ता है, इस जहर को काटने का एक ही रास्ता है, इस जहर को काटने का एक ही रास्ता है, जिंदा होने का एक ही रास्ता है। अगर आप जहर पी लिए हैं तो जहर से बचने के लिए, मौत से बचने के लिए किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, जहां जाकर के आपकी जहर को काटा जाएगा, आपकी जहर को निकाला जाएगा और आपकी जिंदगी को बचाया जाएगा, आपको मौत के मुंह से निकाला जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको किसी मस्त फकीर के संगत में, सोबत में रहना पड़ेगा, किसी मस्त फकीर के संगत में, सोहबत में रहना पड़ेगा। तब धीरे धीरे आपके अंदर की जहर कटेगी, धीरे 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 आपके अंदर की जहर कटेगी और धीरे 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 आप जिंदा होते चले जाएंगे। और सिर्फ जहर ही नहीं कटेगी, सिर्फ जहर ही नहीं कटेगी और सिर्फ आप जिंदा ही नहीं होंगे, बल्कि आप धीरे धीरे खुदा होंगे, धीरे धीरे खुदा होंगे और एक दिन पूरा का पूरा खुदा हो जाएगा। तो ये मस्त फकीरों की संगत सोबत में पढ़कर ही होगा सत्संग की महिमा। जैसे एक इंसान कोढ़ का, बीमारी का रोगी था, पूरे बदन घाव से, जख्मों से भरी हुई थी, पूरा जिस्म गल चुका था, मवाद से, पीप से भरा हुआ था। सभी लोग घृणा करते थे, भागते थे, दूर रहते थे। तब वो एक हकीम के पास गया, बोला देखिए मेरी जिस्म की क्या हालत हो गई है, मेरे शरीर की क्या हालत हो गई है, मेरी बॉडी की क्या हालत हो गई है, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए।
ऐसा कोई दवा दीजिए, ऐसा कोई नुस्खा दीजिए जिससे हमारा जिस्म फिर से नया हो जाए, जैसा था वैसा हो जाए। तो लोग कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, ठीक हो जाओगे, जैसे थे वैसे ही हो जाओगे, बिल्कुल वैसे ही हो जाओगे, यकीन करो, भरोसा करो। पहले बताओ कि तुम रहते कहाँ हो, बैठते कहाँ हो। उसने बताया मैं फला जगह रहता हूँ, फला जगह बैठता हूँ। बोला वहां कोई पेड़ है जिसके नीचे तुम बैठते हो, किसी पेड़ के नीचे बैठते हो? तो बोला हाँ, एक इमली का पेड़ है और मैं हमेशा उसी के नीचे बैठता हूँ, और ऊपर से इमली गिरती है तो मैं उसको खाता हूँ। बोले कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, खट्टा खून को फाड़ देता है, बदन में जहर भर देता है, ये उसको मालूम नहीं था। तो कोई बात नहीं है, अब तुम उस जगह पर नहीं बैठोगे, उस पेड़ के नीचे नहीं बैठोगे, एक नीम के पेड़ के नीचे बैठोगे। अब उस पेड़ के नीचे कभी मत बैठोगे, अब से तुम नीम के पेड़ के नीचे बैठोगे, मेरे नीम के पेड़ के साये में बैठोगे, और जो नीम की पत्ती गिरेगी एक दो करके चबाया करोगे। उसमें से नीम की कोड़ियां गिरती है, फल गिरता है, उसको चूसा करोगे, उसके रस पिया करोगे। बस इतना ही करोगे, ऐसा ही करोगे। तो वो इंसान वापस गया और नीम के पेड़ के नीचे बैठने लगा, नीम के पेड़ के साये में बैठने लगा, और उसके पत्ती जो गिरती थी एक दो करके चबाने लगा, चूसने लगा, और उसके नीम कौड़ी जो होती है, फल होती है जो, वो भी जमीन पर गिरती थी, उसे उठाकर चूसने लगा, उसके रस पीने लगा। 1 महीना में जख्म जो है सूखने लगा। अब कोई नया जख्म पैदा नहीं हुआ, अब कोई नया जख्म नहीं बना, और धीरे 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 6 महीने के बाद बदन के सारे जख्म सूख गए, और साल भर में पूरी नई चमड़ी, नया चमड़ा हो गया। वो चमड़ा ही झड़ गई, वो चमड़ी ही झड़ गई, नई चमड़ी जम गई, नया चमड़ा हो गया, पहले से खूबसूरत, पहले से सुंदर हो गया। ये कैसे हुआ? नीम के पेड़ के साये के नीचे बैठने से हुआ। क्योंकि नीम के पेड़ के साये में जो जमीन पर गिरती है, इस इमली के पेड़ के साये में जो जमीन पर गिरती है, वो जिस्म पर असर किया तो घाव बना दिया, जख्म बना दिया, कोढ़िया बना दिया। ऐसे ही नीम के पेड़ के साये में जो जमीन पर गिरती है, उसकी असर वो उसके जिस्म पर पड़ी और वो सारे जख्मों को सुखा दिया, वो सारा जख्म सूख गया। तो कोई दवा नहीं खाया, कोई दुआ नहीं किया, कोई ताबीज नहीं पहना, सिर्फ संगत सोहबत से उसकी जिस्म खराब हुई और उसकी जिस्म अच्छी भी हो गई। इमली के पेड़ के संगत सोहबत में था तो उसका सारा जिस्म कोढ़ का शिकार हो गया, और नीम के पेड़ के संगत सोहबत में रहा तो उसका सारा जिस्म फिर से नया हो गया। ऐसे ही आप किसी मस्त फकीर की संगत सोहबत में रहेंगे तो ही आप खुदा हो सकेंगे, तो ही आप खुदा हो सकेंगे, खुद को पहचान सकेंगे कि मैं खुदा हूं, खुद को जान सकेंगे कि मैं खुदा हूं। वहां ऐसी माहौल है, हालांकि वो अकेला रहेगा, तन्हा रहेगा, मगर एक भीड़ से बड़ी पावरफुल है, एक भीड़ से बड़ी शक्तिशाली है कि वहां पर मौजूद खुदा है और वो खुद मौजूद है और खुद खुदा है। ये जो भीड़ है मजहब की, ये जो भीड़ है समाज की, जो भीड़ है परिवार की, जो जलसे में जाते हैं, जुलूस में जाते हैं, पिकनिक में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, उत्सव मनाने जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, इन भीड़ों के अंदर आत्मा नहीं होती।
होती, रूह नहीं होती, मुर्दे होते हैं, लाश होते हैं। और लाशों के भीड़ में जो भी जाएगा वो लाश हो जाएगा, मुर्दों के भीड़ में जो भी जाएगा वो मुर्दा हो जाएगा। भीड़ की आत्मा नहीं होती, भीड़ का परमात्मा नहीं होता, भीड़ में आत्मा नहीं होती, भीड़ में परमात्मा नहीं होता। तो जितने शादी ब्याह में आप जाते हैं, जितने उत्सव में जाते हैं, जितने मेले ठेले में जाते हैं, इन सब में आपको परमात्मा नहीं मिलेगा, खुदा नहीं मिलेगा, आत्मा नहीं मिलेगी, रूह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब मुर्दे हैं, ये सब मुर्दे हैं। हालांकि धर्म धार्मिक है, जैसे कुंभ के मेले में साधु सन्यासियों में भीड़ लगी है, मगर वहां कोई भगवान नहीं है, वहां किसी के पास भगवान नहीं है, वहां किसी में भगवान नहीं है। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं गया हूं खिचड़ी मेले में, साधु सन्यासियों के पास में बैठा हूं, गया हूं, देखा हूं, इनकी आत्मा, इनकी रूह सोई हुई है, मरी हुई है, अंधी है, अज्ञानी है, लंबी लंबी जटाएं बढ़ाए हैं, नंगे हैं, वीडियो लगाए हुए हैं। यही उनकी अज्ञानता है, यही उनकी अज्ञानता है। साधु बने, नागा साधु बने, मगर ये क्या है, ये क्या है? खुद से भागे हुए, खुद से डरे हुए, खुद से दूर, खुद से अनजाने। ये खुद को नहीं पहचानते कि मैं कौन हूं, ये खुद को नहीं जानते कि मैं कौन हूं। शक्ति पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, शांति पाने के लिए साधना, तपस्या, ध्यान करते, नंगे धड़ंगे जटाए बढ़ाकर कुंडलिनी जगाते। ये सब करके खुद से और दूर होते चले जाते हैं, खुद से और अनजान होते चले जाते हैं। राम ने कोई जटा नहीं बढ़ाई थी, कृष्ण ने कोई जटा नहीं बढ़ाया था, वो भगवान थे, वो खुदा थे। नानक ने, मोहम्मद ने कोई जटा नहीं बढ़ाई थी, वो नंगे धड़ंगे बैठकर विभूति लगाकर नहीं बैठे थे, खुद को पहचाने थे, खुद को जाने थे। मोहम्मद 14 साल तक गारे हिरा में जाकर खुद को पहचाने, नानक 12 साल तक आंख बंद करके ध्यान में जाकर खुद को पहचाने, बुद्ध 14 साल तक ध्यान में जाकर खुद को पहचाने, कबीर प्रेम में लीन होकर खुद को जाने, खुद को पहचाने। ये जटा नहीं बढ़ाए, ये साधु सन्यासी नहीं बने, ये घर छोड़कर नहीं गए। खुद को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, ईश्वर को पाने के लिए कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं। जो जहां है वहीं पर खुद को जान सकता है, खुद को पहचान सकता है, अगर जानना चाहे, पहचानना चाहे तो। और किसी ऐसे मस्त फकीर के पास जाना होगा जो खुद को जानता है कि मैं खुदा हूं, खुद को पहचानता है कि मैं खुदा हूं, दावा नहीं करेगा कि मैं खुदा हूं, दंगे धड़ंगे रहेगा, पागल के जैसा रहेगा, दीवाना के जैसा रहेगा, मगर वो दावा नहीं करेगा कि मैं खुदा हूं, मैं खुद को जानता हूं, मैं खुद को पहचानता हूं। मैं कहता हूं, दावा करता हूं, इसलिए कि आप खुद को जान सके, खुद को पहचान सके। अगर मैं दावा नहीं करूंगा कि मैं खुदा हूं तो आप कैसे खुद को जानने की कोशिश, खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे? मैं खुदा हूं, ये मैं दावा करता हूं, ये सुनकर आपको लगेगा ना कि अरे ये जब खुदा है तो मैं खुदा क्यों नहीं हूं, ये जब खुदा हो सकता है तो मैं खुदा क्यों नहीं हो सकता हूं। राम भगवान हुए, कृष्ण भगवान हुए, नानक नूर हुए, मोहम्मद खुदा हुए, वो भी इंसान थे, माँ बाप के बीच से पैदा हुए थे, कोख से निकले थे, गर्भ से निकले थे, माँ के सीने से दूध पिए थे, बचपन गुजारे थे। आप भी वही जिस्म, वही शरीर, वही बॉडी पाए हैं जो उनकी थी, और आप भी वही बन सकते हैं, वही हो सकते हैं, और वही हैं जो राम है, कृष्ण है, नानक है, मोहम्मद है। आइए मेरे पास, बैठिए मेरे पास, रहिए मेरे साथ, रहिए मेरे संग, फिर देखिए,
پھر دیکھیے آپ کیسے نہیں بدلتے ہیں، خود کو کیسے نہیں جانتے، خود کو کیسے نہیں پہچانتے۔ میں دیکھتا ہوں، میں دیکھوں گا آپ کیسے خدا نہیں ہیں، آپ کیسے بھگوان نہیں ہیں، یہ میں ثابت کروں گا، اور یہ آپ خود ثابت کریں گے، یہ آپ خود کہیں گے، مجھے کہنا نہیں پڑے گا، مجھے ثابت کرنا نہیں پڑے گا۔